So for understanding the Bayesian network, and we understand the Bayes theorem. Okay, for understanding the Bayesian theorem in past, we understand the Bayes theorem, which is theorem which help us to understand get the conditional probability. If you are sure of some event, how we can able to predict the second event probability within a subset or set. For understanding the problem of the Bayesian network, I have taken an example of the insurance data representation. Insurance data, everyone is getting insured nowadays. In the worst case, every bike and you see, human life is not so important, so everybody don't insure human life. Actually, that's why they insure their bikes and cars and all, their whole houses. But the human lives in general, in India is not important. Right now, the trend is picking up. People are going for the health insurance now. But how the insurance company decide to the monthly variables for the individual, or you can say that the monthly variables for the individual for the respective vehicle or anything. We need some probabilistic model from which the personal objects of the person which is insured, their value is going to be determined in the long run, and if they lost the value, how those deterministic value can give them the output, give them their output by the insurance. Now, understanding one database can often be complex data, so we can't say that this person has this much of income, so we should give the insurance. No, when we are talking about the insurance, we are talking about the different things. Now, if we are talking about the insurance of some vehicle, then health of the vehicle is important. If you're talking about the insurance of some individual, then health of the individual is also important. Okay, so in general, when we are taking the insurance, we and talking about the vehicle, we take the many variables in the account, like what is the age, what is the socio-economic status of the person, what is the risk aversion, whether they have a record of the accident or not, what is the vehicle year, what is the car model, or which type of the auto model is, whether they have gone for the accident or not, what is the model, what is the drive quality, what is the mileage of the vehicle, what is the anti-lock system, what is the driving skill of the individual. So many variables will come in account to really give an automobile insurer the idea of a customer. So the automobile insurer will able to give an insurance to them. So in this example, if we take an example, we are observing a 20,000 observation within the 27 variables. But प्रॉब्लम तो यही है ना कि जब आप 20,000 ऑब्जर्वेशन करते हैं 27 अलग अलग वेरिएबल पे, तो वो एक दूसरे को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, या एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करेंगे कि आप एक राइट अंडरस्टैंडिंग में पा पाए. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग वन डेटा सेट कैन ऑफन बी एक कॉम्प्लेक्स टास्क. एक डेटा सेट को समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकता है. इसीलिए हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स यूज करते हैं, लाइक बेसिक नेटवर्क का, कि जिससे हम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर पाए. अब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है फील्ड, इसको हम ऐसे करते हैं कि जो वेरिएबल्स हम बनाए होते हैं उसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वही एसाइक्लिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं. और जो ये होते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल स्पेस को इनकोड करने में आसानी होती है और एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बनाने में आसानी होती है. लाइक जो ये हमने यहाँ पे केस लिया है कि डेटा सेट ऑफ ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कस्टमर इंफॉर्मेशन 20,000 ऑब्जर्वेशन 27 वेरिएबल्स.
अब उन वेरिएबल्स को एक कैसे एक नेटवर्क में शो कर रहे हैं, देखिए एज रिलेटेड है सोशल इकोनॉमी से भी, गुड स्टूडेंट से भी, सीनियर ट्रेन से भी, उसके ड्राइविंग स्किल से भी, उसके मेडिकल कॉस्ट से भी, ठीक है। अब गुड स्टूडेंट उसका गुड सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, रिस्क कितना एवर्जन है, अदर कार है या नहीं है, एंटी थेफ्ट होगा नहीं है, क्योंकि वो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अब प्रधानमंत्री की गाड़ी कोई चुराएगा तो ऑब्वियस है वो प्रधानमंत्री की गाड़ी पुलिस कहीं से भी ला के देगी, पुलिस तो भैंस भी ला के दे देती है मिनिस्टर की, लेकिन हमारी गाड़ी कोई चुराएगा तो शायद पॉसिबिलिटी कम, ठीक है। तो ड्राइविंग स्किल कैसी है उसकी, रिस्क एवर्जन कैसा मॉडल है, उस हिसाब से रिस्क डिसाइड होगा, एयरबैग है कि नहीं है, कुशन है या नहीं है, एंटी लॉक है या नहीं है, रेड डॉट लॉक है कि नहीं है, व्हीकल है, कार की वैल्यू कितनी है, थेफ्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ये आपस में क्या है, मामला कनेक्टेड है बहुत ज्यादा। तो अब इस पूरे नेटवर्क को बनाने के बाद वो जो एग्जाम्पल है वो 3 तरीके के सब टास्क में डिवाइड होता है, मतलब बेसिक नेटवर्क इन जनरल। पहला स्ट्रक्चरल लर्निंग, आइडेंटिफिकेशन और नेटवर्क टोपोलॉजी, तो यहाँ की आइडेंटिफिकेशन ये है। दूसरा पैरामीटर लर्निंग, एस्टिमेशन ऑफ न्यूमेरिकल पैरामीटर, जैसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं सीडीपी फॉर अ गिवन नेटवर्क। ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। और ये क्या है, inference queries can thus be made using the resultant graph, for example by taking a portion of the person variable in order to evaluate the distribution of other variables of interest, ठीक है। तो ऐसे चीजें चलती हैं, किस हिसाब से हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से बनाते हैं पैरामीटर, पैरामीटर से बनाते हैं इन्फ्रेंस क्वेरीज। अब उसको बनाने के लिए हमको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, पहला रैंडम वेरिएबल, द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। दूसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको हमने बताया था कि भाई हम अभी हमारा फोकस वेरिएबल पे है, तो एक वेरिएबल एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का हमको पता लगाना है कि एक्सीडेंट कर पाएगा या आदमी कर सकता है, तो अगर उसका ऑलरेडी एक्सीडेंट का कोई रिकॉर्ड है तो उसकी परसेंटेज निकाल, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के हम बात करेंगे। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्फ्लुएंस देखेंगे कि भाई कैसे मामला चल रहा है, ठीक है। these two variables are said to be independent, otherwise dependent, ठीक है। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे कि जो हमारा एक्सीडेंट है वो फॉल्स हो सकता है, प्रीवियस एक्सीडेंट ट्रू हो सकता है। तो एक्सीडेंट ट्रू होने के चांसेस कितने, 0.3%। एक्सीडेंट फॉल्स होने के चांसेस कितने, 0.8%, 0.7%। एक्सीडेंट, इस केस में एक्सीडेंट ट्रू होने के चांसेस कितने, 0.8%। एक्सीडेंट फॉल्स होने के चांसेस कितने, 0.2%। और अपने फॉर्मूले पे डाल के हम चीजों को निकाल लेंगे। फिर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को, नोट्स में करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, और आर्क्स जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिस्टिक इंटरेक्शन दिखाते हैं। ये जो इंटरेक्शन है, कैसे गुड स्टूडेंट का एज से भी डिपेंडेंट है, उसके सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से भी डिपेंडेंट है। एज जो है मेडिकल कॉस्ट से भी डिपेंडेंट है, ड्राइविंग स्किल से भी डिपेंडेंट है, सीनियर ट्रेनिंग से भी डिपेंडेंट है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से भी डिपेंडेंट। अब यहाँ पे जैसे ड्राइव, एक बाइसेन ग्राफ बनाने की कोशिश की जा रही है कि ड्राइव की क्वालिटी, जो उसका माइलेज है और उसका एक्सीडेंट है, उससे एक ड्राइव की क्वालिटी हम बना रहे हैं। अब जब ये ग्राफ हम बनाएंगे ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा उसको हम उसी हिसाब से फिर प्रोसेस में यूज भी करेंगे कि ड्राइविंग स्किल की ड्राइविंग क्वालिटी एंटी लॉक है तो किस हिसाब से एक्सीडेंट को रेफर करेगी। और हम एक डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ बना के, और ये जो कॉलम्स हैं उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी मॉडलिंग भी वैसे ही करेंगे। इसमें क्या करेंगे, तब हम नेटवर्क के स्ट्रक्चर को समझेंगे। नेटवर्क के स्ट्रक्चर को समझने के बाद एक्सेस करेंगे उसके स्कोर को, और यहाँ पे स्कोर को एक्सेस करने के बाद कंस्ट्रेंट मेथड्स लगाएंगे। फिर बहुत सारे हाइब्रिड मेथड्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसी मॉडल को यूज करके हम उसकी एक इसी मतलब जो हमने जो वेरिएबल लिया है, इसी वेरिएबल को यूज करके हम एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल को अपना एक कॉलम पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमको एक एस्टिमेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन मिल जाएगा, बस खत्म। उसी एक्यूरेट एस्टिमेशन के थ्रू हम हेल्थ इंश्योरेंस सामने वाले का डिफाइन कर देंगे कि भाई आपको ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, आपका इतना पैसा है, आपका इतना पैसा, आपका इतना पैसा। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बायसियन इन्फ्रेंस बायसियन नेटवर्क का,
कि एक्चुअली में इंश्योरेंस बायसियन नेटवर्क कैसे काम करता है। यहाँ पे है हेल्थ इंश्योरेंस लेना है किसी को, हेल्थ इंश्योरेंस किस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करता है, ये एक आपको विजुअलाइजेशन के साथ दिखा दिया गया है। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि एक्चुअली में बायसियन नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है, ये इसका डेफिनेशन वाला पार्ट। तो डेफिनेशन वाला पार्ट को भी हम लोग देखते हैं, बायसियन नेटवर्क क्या होता है, व्हाट आर बायसियन नेटवर्क। ओके, अब आपको शायद कोई टर्म में प्रॉब्लम नहीं होगा, जो टर्म यूज होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल से मैंने होप करता हूँ कि वो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई। तो आप आगे आइए। Bayesian networks are type of probabilistic graphical model that can be used to build models from data and or expert opinion। ठीक है, हम probabilistic graphical model किस लिए बनाते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन डिफाइन करने के लिए कि हमें ये काम करना है या नहीं करना। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने किस लिए डिफाइन किया, हेल्थ इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में। अब आप यहाँ आइए, हमने पिछले एग्जांपल में अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मॉडल बना दी। यहाँ पे ये समझना है कि कितने टाइप से हम मॉडल बना सकते हैं, कि बायसियन नेटवर्क है क्या और कितने टाइप से हम मॉडल बना सकते हैं। तो ऐसा है, दे कैन बी यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग प्रिडिक्शंस कि हमको इंश्योरेंस देना है या नहीं देना है, एनोमली डिटेक्शन, एनोमली की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, डायग्नोस्टिक, डॉक्टर के पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका डायग्नोस करने के लिए, ऑटोमेटेड इनसाइट्स, यू नो कि डेटा से हम क्या 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 इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं, रीजनिंग, टाइम सीरीज प्रेडिक्शंस, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, और इसको हम नीचे शो करते हैं। और 4 मेजर एनालिटिकल डिसिप्लिन्स हैं जो हमको लिंक करती हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, दूसरा है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, तीसरा है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, चौथा है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है, ऑटोमेटेड इनसाइट्स होते हैं, लार्ज पैटर्न्स होते हैं, एनोमलीज होते हैं पैटर्न में, और हम उसको मल्टीवेरिएट एनालिसिस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न की प्रॉपर्टीज हैं। डायग्नोस्टिक की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम इंफॉर्मेशन की वैल्यू देखते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए बुखार है तो खांसी आ रही थी, नहीं आ रही थी, स्टूल कैसा है, टॉयलेट कैसा है, जो उसकी रीजनिंग करते हैं, जो ट्रबल शूटिंग करते हैं, फिर ट्रेस करते हैं नॉर्मली इसको। प्रिडिक्टिव में क्या करते हैं, ये दो तरीके का हो सकता है, या तो सुपरवाइज्ड होगा या तो अनसुपरवाइज्ड होगा। फिर उसके एनोमली का डिटेक्शन करेंगे, फिर उसको टाइम सीरीज से कनेक्ट करेंगे, फिर उसमें लेटेंट वेरिएबल्स निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव में हम डिसीजन का ऑटोमेशन करते हैं, कॉस्ट बेस्ड डिसीजन बनाते हैं, फिर डिसीजन का सपोर्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग अंदर अनसर्टेनिटी, और हम अनसर्टेनिटी में डिसीजन को बनाते हैं। अनसर्टेनिटी है तो कैसे डिसीजन लेना है, उसमें हम एक प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि आप ये काम करिए। तो डॉक्टर का काम क्या है, डायग्नोस करना और प्रिस्क्राइब करना, ये करिए तो शायद रोग सही हो जाए। वो ये नहीं कहता 100%, हाँ हमारे डायग्नोस के हिसाब से ये प्रिस्क्रिप्शन। तो कभी कभी हम क्या होगा, चीजों को मिला के भी काम करते हैं। बैंक वाला जो अभी हमने हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया, वो क्या है, पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहा है आपकी, फिर प्रेडिक्शन कर रहा है कि करना आपको, लेना आपको, इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वहां पे दो सेटिंग्स हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव। तो डॉक्टर के काम के लिए डायग्नोस्टिक और प्रिस्क्रिप्टिव ठीक है, और इंश्योरेंस देना या नहीं देना उसके लिए डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव ठीक है। तो ये बेसिक है, कि ऐसा नहीं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट कैटेगराइजेशन, ये समझने का कैटेगराइजेशन है कि हम एनालिटिकल डिसिप्लिन को 4 पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव डायग्नोसिस की अपना ये है कि भाई जितने भी लार्ज चंक ऑफ डेटा है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस करके हम उसमें से एक पैटर्न निकालना है। डायग्नोस्टिक में क्या है कि हम हर वैल्यू रीजन करके, वे जो इन्फॉर्मेशन उसमें एक रीजनिंग डाल के एनोमलीज को डिटेक्ट कर ले, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम। शरीर कैसे फंक्शन करता है डॉक्टर को पता है, एनोमलीज आ रही है तो उस एनोमलीज को रिस्पेक्ट में एनोमलीज कहाँ आ सकती है उसको वो पता लगाता है, फिर वहां पे काम करता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या है कि भाई सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग है, तो इस हिसाब से चीजों को देखता है कि
ये जो काम हो रहा है इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव आपको पता ही है प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, कि भाई जब हम एनोमलीज निकालते हैं तो क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसमें कितना पैसा लगेगा, क्या है प्रिस्क्रिप्टिव। अब ये जो हमारे एनालिटिकल डिसिप्लिन है जिसको डेटा एनालिटिक्स कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स में चार काम, डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, प्रेडिक्शन और प्रिस्क्रिप्टिव तरीके से। तो इसको करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स का यूज करते हैं, और एक मेथड है हमारा बायसियन नेटवर्क का मेथड, ठीक है, जिसको बायस नेट, बिलीव नेटवर्क और काउजल नेटवर्क भी कहते हैं, एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है। पिछला अगर काउजल नेटवर्क क्या होता है, पिछला वाला भी सही होना चाहिए तभी अगला सही होगा, ठीक है ऐसा। काउजल, काउजल का मतलब आप जानिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काउजल का मतलब होता है रिलेशन टू और एक्टिंग और अ कॉज, एक्सप्रेशन और इंडिकेटिंग अ कॉज। कॉज जब तक नहीं होगा तब तक वो मेथड क्या होगा, तब तक वो मेथड आपके आएगा। कॉजेलिटीज एंड इन्फ्लुएंस बाय व्हिच वन इवेंट, प्रोसेस, स्टेट और ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ अनदर। एक के ऊपर डिपेंडेंट है चीज है, जो आगे आने वाली चीज है वो पुरानी चीज से डिपेंडेंट है। एटमॉस्फेयर में जो चेंज है, एटमॉस्फेयर का जो चेंज है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है आपके कि आपके जो जल तत्व है पृथ्वी पे, और उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं हीट की वजह से, ठीक है। तो उस हिसाब से वो मून की साइकिल के हिसाब से, मून की साइकिल के हिसाब से वो बिहेव करती है। जो आपका समुद्र होता है उसमें, उसके अंदर चेंजेस होते हैं मून की साइकिल के हिसाब से। तो यही है, मून की साइकिल के हिसाब से फिर उसमें अ, तेजी आती है। तो वो ये सब मतलब समझने वाला पार्ट है कि एक दूसरे पे चीजें कैसे डिपेंडेंट है। अब आगे आइए, प्रोबेबिलिस्टिक जो बायसियन नेटवर्क होता है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क होता है, ठीक है। बायसियन नेटवर्क जो होता है एक प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क होता है। तो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। पहले समझने वाली बात है प्रोबेबिलिस्टिक होती क्या है। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब ये होता है they are built from a probability distribution and also use the laws of probability for predictions and anomaly detection। तो प्रोबेबिलिस्टिक का काम क्या है, एनोमली का डिटेक्ट करना, उसका प्रेडिक्ट करना। कैसे करेंगे, फॉर रीजनिंग एंड डायग्नोस्टिक डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एंड टाइम सीरीज प्रेडिक्शन। डिसीजन मेकिंग करना अनसर्टेनिटी की, और टाइम सीरीज मतलब डेटा आता जा रहा है वो प्रेडिक्ट करता जा रहा है, जैसे आपके शेयर मार्केट में होता है। अब आता है ग्राफिकल। तो बायसियन नेटवर्क कैन बी डिपिक्टेड ग्राफिकली इन फिगर 2 which shows the Asian network, although visualization of Asian network optional, it is great to understand। अब जैसे हम एशिया में विजिट करते हैं, ये एशिया में विजिट करते हैं, फॉल्स है ब्रोंकाइटिस होता है वही फॉल्स है, हम विजिट करते हैं वही फॉल्स है। हम एशिया विजिट करते हैं, क्या उनको ट्यूबरक्लोसिस है? अच्छा, तो 97% को नहीं है, 6% को है। तो अलग अलग कंडीशन पे चेंज होता रहता है। देखिए इंटरेक्टिव वर्जन, देखिए ये इंटरेक्टिव वर्जन है डायग्राम का। ऐप है, ऐप में कि आप कैसे चीजों को चेंज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने कहा कि हम एशिया विजिट कर सकते हैं, नहीं जरूर हम करेंगे एशिया विजिट। क्या वहाँ पे स्मोकर है? हाँ स्मोकर है वहाँ पे। ट्यूबरक्लोसिस होती है, 95% चांसेस है वहाँ पे। वहाँ पर लंग का कैंसर होता है, हाँ होता है, सही बात है। ब्रोंकाइटिस होती है, हाँ होती है। ट्यूबरक्लोसिस, अब देखो उससे रिजल्टेंट नीचे डिपेंडेंट हो रहा है कि यहाँ पे 100% हो गया। अगर हम फॉल्स कर देते हैं यहाँ पे तो नीचे का रिजल्ट डिपेंडेंट हो रहा है। हम यहाँ जब चेंज करते हैं तो यहाँ का रिजल्ट चेंज हो रहा है, और जब हम ऊपर चेंजेस करते हैं ना तो नीचे का रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर फॉल्स हो गया, एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल आई, ठीक है। और डायस्टीनिया क्या है, फॉल्स हो गया। तो ये हमारा नेटवर्क है, ये एक ग्राफ बनाया गया है यूजर इंटरफेस और एपीआई के थ्रू, कि हम जब क्लिक कर रहे हैं कि क्या है। अगर एशिया में हम जाते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, तो उसका रीजन स्मोकिंग है।
तो ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर होने के कितने चांसेस हैं, ब्रोंकाइटिस होने के लिए कौन जो कराते हैं तो एक्सरे में आता है या नहीं आता है, डायस्पीनिया में आता है या नहीं आता, तो इस हिसाब से चीजों को शो करनी पड़ती है। ओके, तो ये मामला चलता है इससे। तो आप समझिए बात को जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नेटवर्क है वो क्या बता रहा है आपको।